नितेश जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे हम जो सजेशंस देते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने दी थी। यस अ, तब शायद एक यंग से लड़के थे। वो कौन, उनका नाम क्या था मुझे अ, याद नहीं। तो ही सिम्स नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि हम जो सजेशंस देते हैं वो ऐसे ही देते हैं जो आप कर सकते हो। श्योर सर। मतलब कि आप वर्क करते हो ना, मतलब इन द सेंस हम जो सजेशंस देते हैं उस सर पर। हमारे पास जो भी आपके सजेशंस या इम्प्रूवमेंट आता है ना, तो हम लोग उसकी पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं हमारी टीम के साथ। एंड जो कस्टमर का वो रहता है तो हम उनको रिवर्ट भी करते हैं उसके लिए, जो हाँ, ये क्योंकि कम्युनिटी कॉल्स में हम जो भी डिस्कस करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने सजेशन दी थी, तो मतलब एक तो हम सजेशन दे रहे हैं क्योंकि देखिए आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जी। वो जो है मतलब इन द सेंस कि हमारा तो बेनिफिट है मगर आपका ज्यादा बेनिफिट है। कोई बात नहीं सर, अगर आपने कुछ ऐसा फीडबैक दिया हुआ है तो हम एक काम करते हैं, सेपरेटली उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है उसका, राइट? हाँ जी, हाँ जी। Okay, so I think we should start the. I think today we will cover the topic about how to manage your non-moving items and reallocate it if you are managing a chain of pharmacy, right? So आज का हमारा टॉपिक ये है. I am just sharing my screen how you can manage your non-moving items. Is my screen is visible? Yes, Nitish. Okay. So for the first of all, to identify the products which is non-moving, here we have given the report about how to define the products about which are non-moving. And the must before we start the session, must required thing is the QR code. If you are using the QR code, so this can be very helpful to you to manage your non-moving items, and easily returns you can make via scanning. We will going to understand and we will cover that points how you can scan the QR code and easily you can make the returns, and as well how you can reallocate that product where if the product is fast moving on any other branches. So let's say once you have downloaded this report, and for the same product if you have the QR on this, and how you can scan that product via mobile application. I'm just sharing my phone screen. Is my phone screen is visible? Yes. Okay, so I'm just logging in to my account.
So I have logged into my account. In the account section, we have given one provision about reallocation and returns. So if you have QR on your product, and easily you can make the you can generate the returns easily to scan via this feature. So once I open this here, they are guiding about to start scanning. Let's say, for example, I have start the scanning and I have scanned this product. Likewise, you can scan the multiple products, whatever you want to. If there is a non-moving or near expiry or if that is expired, likewise, you can just add to this draft, and all the details will become like from which distributor you have buy it from. Once you finish this allocation after scanning all the products, the draft will be generated into the same account. See, I just complete the scanning, and here in the purchase return, you will be draft will be reflected automatically. No matter however product you have scanned and entered into the same draft, so in easily you can generate the purchase draft like purchase return draft. Likewise, the time you can notice here in the same time we have generated it. Just a minute. So via this scanning directly, once you will edit this draft, and after that directly you can convert it into the challan, and then you can convert into the purchase return bill easily. So it required the so the purchase return bill is generated successfully. So likewise, you can manage your purchase return if there is any product which is nearby expiry or as any product is expired or non-moving. Likewise, you can easily via scanning with this reallocation feature with the help of mobile application, you can easily generate the purchase return. Now let's discuss about to reallocation about. For example, if you have a multiple of stores and you want to manage the non-moving items, for that what you can do, let's say our system of we are scanning the product in the mobile application itself. For example, at one store the product is non-moving, at same time any another store the product is fast moving. So while scanning the product, at the time of scanning you will get the result about this product are fast moving at the another store. You can directly transfer that stock to the that perfect store. So likewise, we will understand that thing as well. So let's say I'm just scanning the those product now. Let me log in into my warehouse account now. So this is my warehouse account, and I have again opened this reallocation and returns. Once I start the scanning, so the product I have scanned here. So likewise I will receive the details where is the this product is fast moving. Here I am getting the two suggestions like Nitesh Pharmacy HO and the Nitesh Pharma CG Road. So like for example, I want to transfer this medicine to this branch 2. So once I will click on that,
I will click on the add to draft, and product will be added into the draft, and I will finish this allocation. So the same thing in my same account, I will be logging first. So if I will come into the stock transfer section here, in out section GDN, because I have generated the draft for my another branches. So here we can filter it into the draft. So we can check here at the same time draft is generated here. Likewise, and you can open this draft and you can convert it into the stock transfer invoice. So once I save this, so the same stock transfer is triggered for the another branch. Now the branch needs to be accept that stock transfer which is triggered by this branch. So I'm just logging into my another branch to accept that stock transfer. So in the same section here, if I will check if any stock transfer GRN is pending, likewise I can open this and I can accept this stock transfer likewise. So at the same time, likewise, you can manage all your non-moving items at the in your branch. For example, if you are managing the chain of stores, so likewise you can relocate the item at the perfect store where it is the fast moving. So likewise, we can manage all the things as we discuss in the call. For the same thing as we discussed for the non-moving or near expiries or expired item, with the same procedure, you can manage as per your requirement. As we discussed for this feature, we must require the QR code on your inventory. And for example, if you have not applied the QR code on your inventory, the basic thing, likewise, you can manage if we have given the traditional method for that. So now we can start the question and answer session. Yes, if anybody has a question, we can start. नितेश, मैं ये कह रहा था जैसे आपने क्यूआर कोड का बताया। Yes, अब please. सपोज करो हमारे पास जो है हमने क्यूआर कोड लगा रखा है और कोई कस्टमर हमसे परचेज करके गया वो आइटम, Yes. ठीक है। अब वो जो कस्टमर है या पेशेंट है वो क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करेगा evital.in, तो उसे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर या मार्जिन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिलेगी ना? नहीं सर, उनको सिर्फ जस्ट प्रोडक्ट का डिटेल मिलेगा, बाकी उनको डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह का कुछ डिटेल नहीं मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और। सपोज करो जैसे हमने आपका evital RX एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है। Yes. और हमारे कंपटीटर सपोज करो गोयल सर ने भी आपकी evital RX डाउनलोड की हुई है, ठीक है। Yes, हमारा yes. प्रोडक्ट अब उस क्यूआर कोड को अगर गोयल सर स्कैन करते हैं तो क्या उन्हें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का पता चल जाएगा कि भाई ये कहाँ से मंगवाते हैं? जी नहीं सर, उसमें भी उनको डिस्ट्रीब्यूटर का आइडिया नहीं आएगा इस चीज पे। मतलब जो बट हमारा इसमें क्यूआर कोड, हाँ, हाँ बताइए। बट इसमें सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर का जहां तक सवाल है ना, तो अगर आपको मैडगाइड के लिए जैसे आइडिया हो ना, तो हम लोग वैसे भी अगर आप प्रोडक्ट वहां पे सर्च करते हैं तो उस एरिया के रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स का हम जस्ट आपको एक एस्टिमेट आइडिया भी देते हैं कि कैन बी अवेलेबल दिस प्रोडक्ट टू दिस डिस्ट्रीब्यूटर। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे हमारी जो है आसपास जो भी कॉम्पिटिटिव फार्मेसी है, सपोज मैंने तो जस्ट एग्जांपल के लिए कहा था, तो अगर उनके पास भी आपका evital RX सॉफ्टवेयर है जी। और वो अपनी ऐप से हमारा क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, क्योंकि हम Yes. दोनों के पास evital RX हाँ, सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल। मगर Yes. अलग-अलग फार्मेसीज हैं, Yes. तो क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूटर की इंफॉर्मेशन या हमारा जो भी डिटेल्स है उस प्रोडक्ट पे वो उन्हें पता लग सकती है? नहीं सर, उसका मैं आपको रीजन भी बताऊं, क्योंकि हम जब क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना, तो उसका जो रेफरेंस होता है ना कि प्रोडक्ट कहाँ से आया, उसका रेफरेंस लेके हम लोग दिखाते हैं। तो अगर आपने वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज की है, मतलब एंटर किया है वो परचेज, तो उस रेफरेंस भी वो प्रोडक्ट फाइंड करके आपको दिखाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर का नीचे नाम दिखाता है। तो अगर हाँ। आपने पास परचेज एडेड है तभी वो आपको ही दिखाएगी, वो किसी और को नहीं दिखेगा। अच्छा, वो किसी और को नहीं दिखाएगी, चाहे बेशक से चाहे उनके पास आपका फार्मेसी सॉफ्टवेयर हो, रिटेल फार्मेसी सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया। यस, कैलाश जी बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे सर।
क्या अगर एक बार एक्सपायरी डिलीट करने के बाद सॉफ्टवेयर में फिर भी स्टॉक क्यों बताता है वो? एक्सपायरी डिलीट करने के बाद आपको स्टॉक दिखाता है। हाँ, ओके वो सर। नहीं दिखाना चाहिए ना। हम बिल करते हैं, फिर वो स्टॉक एंट्री हो जाता है, फिर प्रिंट आउट देते हैं, तो फिर वो उसको डिलीट करना पड़ता है वापस से। अच्छा सर, वैसे आप कहाँ से डिलीट करते हैं एक्सपायरी? एक्सपायरी मैंने दिसंबर तक डिलीट किया हुआ है। अच्छा ओके सर, मुझे लगता है एक हो सकता है क्या इशू है, हम लोग एक बार इसको चेक कर सकते हैं। सो सर, आपने इसके लिए आई थिंक हमारा जो सपोर्ट टीम है उसमें कांटेक्ट एक बार किया हुआ? हाँ सर। एक बार आपने हमारी सपोर्ट टीम में कांटेक्ट किया हुआ इसके लिए? हाँ बोला था, उन्होंने एक्सपायरी डिलीट करने का बताया, मैंने उसके हिसाब से डिलीट किया, उसके लेकिन बाद भी स्टॉक दिख ऐसे रहा है? भी स्टॉक वैसे ही बता रहा है। ओके बिल नहीं हो रहा है लेकिन स्टॉक दिखाता है, फिर क्या मतलब है? वो बिल स्टॉक नहीं ठीक है। दिखाना चाहिए ना, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि जी कितना स्टॉक है कितना जी नहीं जी, है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आफ्टर दिस कॉल मैं एक बार सपोर्ट टीम से हमारी आप जो हमारी टीम है वो आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो आपने रेज किया हुआ ना इसके लिए टिकट, आपका फार्मेसी नाम मुझे इस चैट बॉक्स में दे दीजिए, तो एज पर दैट मैं उनको Jairaj, please इन्फॉर्म कर drop पाऊँ। the chemist code in the comment section so that we can reach you. आप आपका chemist code डाल दो comment में. 31 में मत ना श्री मेडिकल। आप वो केमिस्ट कोड, जैसे अभी जानवी जी ने बताया ना, आपका केमिस्ट कोड यहाँ पे चैट बॉक्स में ऐड कर दीजिए, हम लोग वो फिर चेक कर लेंगे उसके लिए। एक्चुअली केमिस्ट कोड रेफरल कोड होता है, वो टाइप कर दीजिए। स्मॉल स्मॉल लाला। अच्छा नितेश, मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने जब आपका रिसेंटली सॉफ्टवेयर परचेज किया था तो मुझे एक्सपायरी डिलीट करना नहीं आता था, तो मैंने ना गलती से उन्हें डिसकंटिन्यूड ऑप्शन वो कर दिया है सिलेक्ट। ओके तो मतलब उसको फिर वापस, मतलब उसको डिसकंटिन्यूड से हटाया जा सकता है ना? हाँ, हटाया जा सकता है सर। जैसे आपने वो प्रोडक्ट मास्टर सर्च जो है ना सर हमारा, वहाँ पे आप जैसे प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे, तो वहाँ भी हमने ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप उसको सेम प्रोडक्ट को वापस नॉर्मल कर सकते हैं। ओके। यस। मास्टर क्या कह रहे थे आप? मास्टर सर्च जो हमारा डैशबोर्ड पे आता है, अच्छा, डैशबोर्ड पे तो हाँ, मेरे ख्याल मतलब से। आई थिंक सभी स्क्रीन पे ही होगा, मास्टर सर्च होगा। ओके कोई ठीक बात है। नहीं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो हम लोग ये कॉल के बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एनीबॉडी एल्स? नितेश, मैं ये यस। कह रहा था कि जो आपके जो लॉयल्टी प्रोग्राम था उसके जो मेंबरशिप कार्ड्स हैं, वो प्लास्टिक के जो आप वो दिखाते हो उसमें, वो हम आपसे परचेज कर सकते हैं? सर, इसके लिए मुझे मेरी टीम से डिस्कस करना पड़ेगा। उसके लिए फिर मैं आपको एक बार पूछ के आपको आंसर कर सकता हूँ। ठीक ठीक। या प्रणय जी का सवाल है, हाउ टू डिलीट एक्सपायरी फ्रॉम स्टॉक एंड फ्रॉम वेयर? ओके सर, एक्सपायरी का जो रहता है हमारे पास, हम अलग से एक प्रोफाइल एंड सेटिंग में जब आप जाते हैं, तो हम वहाँ पे प्रोविजन देते हैं कि आपकी एक्सपायर्ड बैचेस जो होती है ना, आप सारी वहाँ पे बल्क में डिलीट कर सकते हैं। लाइक मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप सर्विस एंड टूल्स में आते हैं ना, यहाँ पे हम आपको डिलीट एक्सपायर्ड बैचेस का ऑप्शन देते हैं। तो इस तरह से आपकी जितनी भी एक्सपायर्ड बैचेस होंगी, आप यहाँ से एक बल्क में ही पूरा उसको अपडेट कर सकते हैं, तो वो बल्क डिलीट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? हेलो। यस यस सर। सर, एक्चुअली मेरे को जानना है जी कि मान लो कि हमारे जो लॉयल्टी कॉइन इश्यू करते हैं, जी तो जो सेल बिल हम व्हाट्सएप करते हैं और हार्ड कॉपी जो हमारे कस्टमर लोगों को देते हैं,
तो उसमें भी मेंशन होना चाहिए ना जी कि मान लो कि 10% दिया या 15% दिया, जो भी है वॉट एवर दिया, जी तो मेंशन नहीं होता है। मैंने ऐसे टिकट रेज किया था और वो मैडम भी मेरे को ऐसे सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सके मैं ओके। इतना। आई थिंक सर इनवॉइस में तो होता ही है मेंशन नहीं लॉयल्टी होता है पॉइंट्स। सर। अच्छा ठीक है सर, आपका केमिस्ट कोड आप मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे प्लीज सी चैट बॉक्स सी में। 20 PR, ओके, मतलब आप चैट इस बॉक्स में लिखना है ना? हाँ चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए तो सर क्या है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है। नीतीश, एनीबॉडी एल्स? यस। मैं ये कह रहा था जैसे हम जैसे टाइप करते हैं तो जैसे अंडर 6 मंथ जो एक्सपायरी प्रोडक्ट होता है, जैसे कस्टमर या पेशेंट हमसे परचेज करने आया और जी। हमने अपने सिस्टम में डाला, तो जी। उस पे जो है ना वो रेड सी लाइन आ जाती है ऊपर की, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एक्सपायर्ड इन 6 मंथ्स। यस। तो मैं ये चाहता हूँ ये पॉपअप आए ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भी कस्टमर को भी मतलब वो ज्यादा कॉशियस हो जाता है कि भी ये रेड लाइन सी कैसे आई थी, क्योंकि हमारा सिस्टम कई बार दिख जाता है, हमारी लोकेशन सिस्टम की कुछ इस तरीके से है। अच्छा। हाँ जी। बट सर इसमें तो कैसा ना, देखिए रेड लाइन मतलब एक हाईलाइट रहता है कि अपने हम्म। स्टाफ को इस चीज के लिए आइडिया हो। एंड देन नेक्स्ट थिंग कि हम लोग जो नारकोटिक्स या स्केड्यूल्ड ड्रग प्रोडक्ट्स रहते हैं तो वो स्ट्रिप हम उस टाइम पे भी दिखाते हैं। तो ये एक जस्ट केमिस्ट के लिए इंफॉर्मेशन रहता है कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो जस्ट आपको एक वेरीफाई करके देनी है। 6 मंथ की एक्सपायरी भी रहती है तो काफी एक अच्छा ही एक ब्रैकेट रहता है एक्सपायरी का, वो कुछ वो नहीं रहता। बट हमको क्या है जस्ट एक अलर्ट देना होता है, उसकी वजह से ये चीज होती है। अगर हम लोग मान लीजिए जैसे आप स्ट्रिप के लिए बता रहे हैं कि अगर हम कुछ ऐसा अलर्ट ना दें तो फिर आपको अगर किसी चीज कोई एक्सपायर्ड होगी तो पता कैसे चलेगा। और इसमें क्या रहता है एक बिल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसमें क्या रहता है उनमें से प्रोडक्ट कौन सी है, आपको सारी प्रोडक्ट ना चेक करनी पड़े तभी आपको वो हाईलाइट दिया जाता है। हाँ, वो बात ठीक है आपकी। अच्छा, इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 6 मंथ्स की बजाय 3 मंथ्स का वो हो जाए अलर्ट। सर 6 मंथ क्या देने के देखिए, इसके पीछे देने का रीजन ये रहता है कि अगर आपको एक अलर्ट 6 मंथ पहले रहता है तो एक डिसेंट नंबर रहता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेम उस टाइम पीरियड में कांटेक्ट कर पाए, या फिर अपना 3 मंथ का एक्सपायरी ब्रैकेट उस पर फोकस करके उसके बाद फिर अगर 3 महीने में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न करनी है तो उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। तभी हमने वो जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो 6 मंथ का है कि हाँ वो आपको एक बात बार बिल्कुल ठीक चांस है। मिल जाता है कि अगर मुझे एक्सपायरी नहीं है 6 मंथ का है तो 2 या 3 महीने कुछ फार्मेसीज क्या करती हैं उस पे ऑफर रन करती हैं या इस तरह का कुछ भी प्रोग्राम चला के वो प्रोडक्ट या तो सेल हो जाता है, या फिर वो ड्यूरेशन के बाद भी अगर वो सेल नहीं होता है तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर सकते हैं। तो आपके पास वो एक जस्ट मैनेज करने के लिए ब्रैकेट है। नहीं, वो आपकी फीचर बहुत बढ़िया है एक्चुअली। मैं खुद जो है मतलब कि फ्रेश प्रोडक्ट लेता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर से और रिटर्न कर देता हूँ डिलीवरी के वक्त ही, अगर कुछ ऐसा आ जाता है आइटम। मगर फिर जी भी बाई चांस जैसे एक आधा प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो जी उस पे वो जो अलर्ट आता है 6 मंथ्स का, तो मैं अंडर 3 मंथ्स तो वैसे भी कस्टमर को नहीं देता, क्योंकि हमारा जो है रिव्यू खराब होता है, फीडबैक खराब होता है। मगर अच्छा। 3 to 6 मंथ्स फिर भी चल जाता है रेंज जो है ना बीच में, अगर वैसे तो नहीं होता प्रोडक्ट, क्योंकि हम फ्रेश डेट के ही रखते हैं। मगर फिर भी वो जो है ना एकदम से पॉपअप आता है ना अलर्ट, रेड लाइन का मतलब ये होता है कस्टमर को भी समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। बट सर अभी मुझे लगता है ये सभी कस्टमर का तो नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसके लिए एक बार सेपरेट डिस्कशन रखते हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं वो लेस पॉसिबिलिटीज देन होती हैं। 3, अलर्ट लेस देन 3 मंथ्स का हो ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, वैसे बढ़िया है। जी। गोयल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो? मनोज सर आपकी आइडिया आवाज नहीं आ रही है। Till that, anybody else, if you have any questions regarding the expiry non-moving. Evian Cream X.
नितिन भाई अभी आ रही है मेरी आवाज? जी सर, प्लीज गो अहेड। मैं इनको सर को ये पूछना चाह रहा था बीच में, वैसे तो मेरा राइट नहीं है, वो स्क्रीन आप कस्टमर को क्यों दिखाते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आती। अरे गोयल सर, मैं नहीं दिखाता, मगर जैसे हमारा जो है ना मिरर लगे होते हैं ना, इधर उधर रिफ्लेक्शन जो है सामने दिख जाती है। ये और तो वो बहुत जब फायदे की एक चीज बनाई है इन्होंने। नहीं बढ़िया है, फायदे की चीज है। मैं रखता भी फ्रेश ही हुई, इसी चक्कर में फ्रेश रखता हूँ। इनका सिस्टम बता देता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना, जैसे ड्राफ्ट CSV अपलोड करता हूँ ना, तो वो ऊपर दिखा देता है। वो हमारे लिए बढ़िया है, मैं तभी सर रिटर्न कर देता हूँ। आपको वो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कस्टमर आपकी और चीजें भी देख लेगा कंप्यूटर में, नहीं आपकी वो एलपी देख भी ले। देख लेगा। अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि कस्टमर हमारी चीजें देखे, क्योंकि और कंपेयर करे दूसरी फार्मेसी से, क्योंकि सबसे फ्रेश नहीं और वो लॉन्ग तो एक्सपायरी अच्छी हमारे बात यहाँ है, ही मिलती है। अच्छी बात है। अरे मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, एलपी देख लेगा सर, आपको समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ, ये आप सही कह रहे हो, मगर वो उनको समझ में हाँ नहीं आता, क्योंकि हाँ। स्टार्टिंग में हमें ही नहीं समझ में आया था कि ये PTR क्या है। देखो एक आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, ऐसा है आप बताइए। हमारे पास कभी भी हमें किसी कस्टमर को शॉर्ट एक्सपायरी आइटम निकालना होता है ना, निकालना हाँ होता हाँ। है, तो हमें स्क्रीन दिख गया तो मैं अपने स्टाफ को ये बोलता हूँ भैया ये वाला बैच लेके आओ, स्क्रीन पे उंगली कर दो ये वाला बैच लेके आओ, ये नहीं बोलता शॉर्ट एक्सपायरी। अच्छा। बढ़िया हाँ ये। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बैच में हाँ उसको स्टाफ को समझा रखा है, मैं बोल रहा हूँ ये वाला बैच लेकर मतलब शॉर्ट एक्सपायरी है कोई ना कोई। तो थोड़ा सा बिल्कुल गोयल सर, आप स्मार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअली हमारी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, 6-7 महीने ही हुए हैं, तो ये जो मैं समझ रहा आपका हूँ आपकी बात। एक्सपीरियंस है ना, ये 2-2.5 साल बाद मैं यूज करूंगा। आपने सही हाँ टैक्टिक बताई है। हाँ। और ये बढ़िया देखो है। शॉर्ट एक्सपायरी आइटम होंगे ही होंगे, जैसे वैरायटी आप मेंटेन करोगे तो शॉर्ट एक्सपायरी आएगी आएगी, हाँ कितना ही ये प्रयास कर लो। नहीं ये आप बिल्कुल सही अच्छा कह रहे हो, मगर नितिन भाई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न ले लेते हैं। कुछ ही होते हैं वो मेल फॉरवर्ड कर देते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है ना बैंड, उसकी फॉरवर्ड कर देते हैं, वो हमारे देखो पास आप स्टॉक। उसमें एनर्जी, अब उसमें ज्यादा एनर्जी मत लगाओ, आपका अभी सेल बढ़ाने में एनर्जी लगाओ, हाँ ज्यादा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। रहेगा। हाँ जी। नहीं तो आपका आपका डिस्ट्रीब्यूटर इरिटेट हो जाएगा आपसे। हाँ ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर हाँ उस हाँ पर फोकस ठीक ज्यादा है। करो। हाँ नितिन भाई मैं ये कह रहा था, जी जैसे हमारे को जो ये अलर्ट आता है ना, अभी जो सर बोल रहे थे, उसमें एक जी इस तरह की प्रॉब्लम थी ना, जैसे सपोज है ना 4 स्ट्रिप तो हमारे एक्सपायर हैं और सपोज 3 जी स्ट्रिप हमारे फ्रेश हैं, टोटल 70 जी का स्टॉक है। तो जैसे जी ही हम है ना सेल बिल पे जाते हैं, सेल स्क्रीन पे, तो वहां पे 70 का स्टॉक दिखाता है, अपनी ये बात हुई थी, एक्सपायर को उसमें इंक्लूड करके नहीं बताए। उसमें हुआ है क्या ओके। सुधार कुछ इसमें? सर उसके लिए मुझे एक बार अपडेट चेक करना पड़ेगा। आई थिंक आपने टिकट भी रेज किया था हमने पहले हाँ डिस्कशन हाँ में। मैं हाँ। उसका सर एक बार स्टेटस चेक कर लेता हूँ कि क्या है उनमें फीडबैक, तो उस उसके केस लिए में भी। क्या होता है कि जैसे ही स्क्रीन पे अपन एंटर देखते हैं ना, कोई 7 का स्टॉक है निकालो भैया, या पता यस चली दोनों के दोनों एक्सपायर हैं, यस। तो भी तो जब तक आप एंटर करके आगे नहीं जाओगे तब तक पता नहीं लगता। मनोज सर, ऐसे ऐसे अच्छा हम लोग इसका सॉल्यूशन एक ये भी हो सकता है ना कि हमारी अगर जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई है, तो या हाँ फिर हम उसका रिटर्न पाना है, मतलब या तो अभी तो हमने परचेज रिटर्न में, अभी जैसे कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न लेता है, अभी तो हमने वो ब्रेकेज एंड लॉस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसमें ही कंप्लीट हाँ करके उसको निकाल हाँ। सकते हो, या फिर जितनी आपकी नहीं तो एक्सपायर्ड वो बैचेस है निकालनी है। कई बार क्या होता है कि हमारे कई महीने गुजर जाते हैं तो भी हम एक्सपायरी को भेजते नहीं है, उसमें पड़ी रहती है, और हम जो देखते हैं अभी तो टाइम है चलो भेज देंगे, इकट्ठी भेज देंगे। तो तो क्या होता है कि सपोज है ना अभी अपन 11th मंथ में है, जी और 11th मंथ की एक्सपायरी है, तो आज तो भेजेंगे नहीं हम इसको इस महीने में, तो जी। 1-2 महीने बाद भेजेंगे, निकालेंगे भेजेंगे, तो उस दौरान वो चीज बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। तो सर तब अगर आप तब भी उसका जस्ट अगर ब्रेकेज एंड लॉस में या फिर डिलीट कर देते हैं सिस्टम से, तो फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि अगर आपको सिस्टम में ही समझ गया। नहीं दिखाएगा ना, अगर जब आप भी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा ध्यान कब जाता है कि जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तब आपको दिख जाता है हाँ, कि ये इसका सॉर्ट आउट करना है, वरना वो फिर सिस्टम में ऐसा भी रहेगा कि कभी कभार आपको वहां पे ध्यान भी नहीं जाएगा। तो एक ये भी इसका बेनिफिट नहीं, रहता है कि हम एक्सपर्ट दिखा रहे हैं अगर, समझ तो गया क्या मैं यहाँ आपकी फिर बात, आपका समझ सॉल्यूशन गया। निकाल सकते हैं क्या? वो तो ये है कि हम एक्सपायरी की लिस्ट निकाल के एक्सपायरी निकालेंगे ही ना, जी पर उस समय पे क्या होता है आदमी एंटर करके बिल्कुल नहीं जाता, सीधा ये देखता है हाँ भाई ये आइटम है, हाँ कौन से रैक में निकालो, जी। इतनी है, फिर वो मिलती नहीं है, फिर देखते हैं यार एक्सपायर तो नहीं हो गई कहीं है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसका स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। और मैं एक जो दूसरी रीलोकेशन के लिए पूछना चाह रहा था कि जी अभी मेरी सवाल कल भी था ये कि डिमांड बनाते समय, यानी वेयर हाउस जब डिमांड बना रहा है, जी मतलब प्रिक्वायरमेंट कर रहा है, जी। तब उस समय भी कोई ऐसा फीचर है कि जो पता लग जाए शॉर्ट एक्सपायरी आइटम कहाँ पड़ा है, शॉर्ट एक्सपायरी शॉर्ट मतलब सर, एक्सपायरी या डंप है या ओवर स्टॉक है, किस ब्रांच सर में पड़ा है?
ओवर स्टॉक तो मतलब अभी हम लोग अवेलेबिलिटी स्टॉक की तो हम लोग सभी में दिखाते ही हैं, जैसे आपको पता ही है ऑर्डर बुक में जब भी आई बटन से। हाँ, आई बटन पे जाना अलग बात है जी अब आई बटन जाना अलग बात है। शॉर्ट बुक में जिस समय शॉर्ट बुक में अपन आइटम शॉर्ट बुक से जब बना रहे हैं ना वेयर हाउस जी। में, जो आपको पता है सारी चीजें अभी जी इसमें जा रहे हैं, तो वहां पे हमें पता लगे कि दूसरे ब्रांच पे ये प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी ओवर स्टॉक या ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। जी। तो सर इसके लिए शॉर्ट बुक बनाते समय बट सब अभी शॉर्ट बुक के टाइम पे ही हमको सभी ब्रांचेस का स्टॉक अगर सेम टाइम पे दिखाना एक थोड़ा हमारे यूआई यूएक्स के लिए भी लिमिटेशन हो जाता है कि अभी अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ, हमारे पास ऐसी फार्मेसीज भी हैं जिनके मोर देन 25 स्टोर्स भी हैं, तो हाँ। अगर वो कोई इसका वेयरहाउस अगर बना रहा है तो उसको 25 स्टोर का कंपैरिजन एक स्क्रीन पे कंप्लीट आएगा कैसे? तो एक हमको वो भी चीज देखनी होती है, बट अगर इसका समझ रहा हूँ। अल्टरनेटिव कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो उसके लिए भी हम सोच सकते हैं। तो एक बार मैं कर देता हूँ मेरे पास मेरी नोटबुक। ओके ओके। नितेश जी 25 की बजाय आप लिमिट कर दो ना कि अप टू 5 आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टोर्स, मतलब जो भी आपके मनपसंद के 5 है उन्हीं में कंपैरिजन, जैसे होता है ना मिंत्रा या अमेजन में कंपेयर, आप किन्हीं 3 को सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ बट सर इसमें अगर हम 5 का, इसमें मतलब काफी ये डिस्कशन तो अभी कैसा ना, ये R&D टाइप का हो गया कि हमने कभी इस बारे में अभी ज्यादा सोचा नहीं तो और भी काफी सारी चीजें निकलेंगी, तो ये चीज है। क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ बाकी के 5 ही दिखाएंगे तो बात तो वही हो जाए कि उनको 5-5 करके सब में देखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम आई बटन पे तो सभी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन जस्ट 1 क्लिक, तो बात तो वहीं घूम फिर के वही आ जाएगी। हमको तो प्रोसेस लेंथी नहीं बनाना है, सिंपल ही रखना है, तो वो तो ऑलरेडी सिस्टम में दिया हुआ है। अगर हम 5-5 करके ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो हमको 5 बार तो वो करना ही पड़ेगा इफ वी आर मैनेजिंग 25 स्टोर्स। नितेश जी देखिए, गोयल सर जो बोल रहे हैं ना, शायद जो मुझे समझ में आया वो ये कह रहे हैं उन्हें आई बटन पे क्लिक नहीं करना, उन्हें एक साथ जो है जो ओवर स्टॉक्ड है वो सारी लिस्ट आ जाए, जी मतलब डिफरेंट उनके जो ब्रांचेस हैं स्टोर्स हैं उसमें तो क्या है, ये आई बटन पे तो हर आइटम पे जाना पड़ेगा आपको, हाँ मतलब बिल्कुल ओवर ये स्टॉक कहीं पे भी है तो पॉपअप जैसा दिख जाए। हाँ जी जी बिल्कुल आप स्टार्टिंग में तो इसमें फॉलो एआई कर को लोगे मगर फिर एआई को अगर 3-4 काम दिन पे बाद बोर हो एआई को जाओगे। अगर इसमें इंटीग्रेट, हाँ, हर आइटम को देखेंगे तो फिर तो मतलब निकला नहीं ना उसका कोई जी वेयर हाउस का। जी और भाई वेयर हाउस एक तो ये हो कि मतलब प्रॉपर वे में वेयर हाउस वहाँ पे स्टॉक हो, एक ये हो कि सिर्फ मैनेज करना, इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए वेयर हाउस हो, वहाँ पे इसकी जरूरत है। जी। इसमें एआई को अगर हेल्प लिया जाए तो कुछ काफी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें, ऐसा नहीं हो सकता। देखते हैं सर इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम क्या दे सकते हैं, एक बार डिस्कस कुछ करके देखते हैं बताइए। टीम से। जी जी श्योर। हाँ। Anybody else if have question? Okay then, if no one has question, we can wrap this call. Thank you for all to join this call. Thank you so much. Have a good day.